and how to develop industry-specific skills through LinkedIn Learning, and much, much, much more. I would like to add something very important here. If anyone has missed that session, unfortunately, worry not. We do have its recording on our YouTube channel, V Nast PNC. You can go and watch it. However, we didn't stop there. And keeping in mind the request of our dear participants, we are here again to get your profiles reviewed by our LinkedIn specialist, Mr. Fahad Kadir. Isn't it amazing? It surely is. And be very careful, listen this. Mr. Fahad is also going to inform you about an amazing and virtual internship that we are having in collaboration with Simco Internationals and The Incredibles. So, moving on. Let me introduce you all to our respectable speaker of the session, a very cooperative person, Mr. Fahad Kadir. Right now, he's working as a business development manager representing a German multinational company, Phoenix Contact in Pakistan. He has done his bachelor's in electronics engineering and MBA in industrial marketing management from PF Kite. Along with this, he has unique and versatile experience in a variety of roles for leading organizations, operating in diverse business sectors, including switchgear industry, power generation, oil and gas, industrial equipment like Bell, Ghibli Corporation, Advanced Electronic International, e-creators, and many more. Now, as the session is going to start, so I want you all to be very, very attentive and participate actively with full enthusiasm because a rare opportunity like this never knocks one's door again and again. And also feel free to ask any questions, queries using the comment section. Our esteemed speaker will answer them at the end of the session. So now, Mr. Fahad, the show is all yours. And thank you very much, Wasifa Beta, for such a brief and nice introduction. Uh, I welcome you all back to this wonderful webinar arranged by this highly enthusiastic organization, NustY. Uh, मैं आपको ये बताता चलूं कि वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, but I really appreciate the efforts which are being done by the team of NustY, because ये बच्चे माशाल्लाह बड़े डायनामिक हैं and they are really concerned about कि जितने भी आजकल जो लिंक्डइन के ऊपर जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं और जितनी भी थ्रू आउट स्टूडेंट्स who really want to learn, they are really helping them out. और आज का जो सेशन है, क्योंकि मैं आप सबको एक बात बताता चलूं कि द लर्निंग is actually a continuous process, it can never stop. LinkedIn is the future. आप ये देख, आप आज मेरी ये बात अपने पास नोट कर लें और लिख लें कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि जब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ही आपकी आइडेंटिटी होगी। जैसे आप देखेंगे कि दुनिया भर में जैसे चिप्स आना शुरू हो गई हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट्स हो रही हैं, सारी चीजें पेपरलेस होती चली जा रही हैं चीजें, और सारी की सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस ही आपकी एक्चुअल प्रोफाइल होगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर ऑनलाइन प्रेजेंस ही सब कुछ है तो ऑनलाइन प्रेजेंस के ऊपर कंपटीशन भी उतना ही होगा, जब ऑनलाइन प्रेजेंस ही सब कुछ है। सो अगर कंपटीशन है तो हम सबको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के ऊपर बहुत अच्छी वर्किंग करनी है। पहला जो सेशन हमारा हुआ था, उस सेशन में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आप लोगों को अपनी प्रोफाइल बनानी कैसे है, बट क्योंकि टाइम की लिमिटेशन थी तो बहुत ज़्यादा मैं प्रोफाइल्स बच्चों की नहीं रिव्यू कर पाया था, जो कि आज हम बच्चों की प्रोफाइल डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। बट Aisha Kudus is the girl who is all the time she is managing this all, जो मुझसे राब्ते में होती है बच्ची। So उसने मुझे she has given me a list of students, बहुत सारे बच्चों की लिस्ट उसने मुझे दी है कि सर इनकी रिक्वेस्ट आई कि इनकी प्रोफाइल रिव्यू करनी है, एंड आई विल डेफिनेटली डू दैट। लेकिन अभी फौरन ही मैंने उसको आयशा को ये कहा है कि बेटा बात ये है कि आई कैन सी
very few students who have joined the session, like for example maybe 70. So वो बच्चे जो इस वक्त सेशन में मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की प्रोफाइल रिव्यू की जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे सेशन में नहीं आए और उनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल के लिंक्स मौजूद हैं, उनकी प्रोफाइल मैं रिव्यू नहीं करूंगा। नाउ व्हाट आई विल डू इज कि मैं बच्चों आप सबके नाम कॉल करता रहूंगा, जो बच्चा या मौजूद हो या चैट बॉक्स में मैसेज कर दे कि ही और शी इज हेयर, तो फिर मैं उसकी प्रोफाइल रिव्यू करूंगा। और दैट स्टूडेंट हैज टू ओपन द माइक, बिकॉज मुझे उसको कुछ चीजें समझानी भी होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जी मैंने किसी की प्रोफाइल उठाई, रिव्यू की और बता दिया ये ऐसे ऐसे है। इट्स अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। अच्छा, वन थिंग, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, शायद आपको मेरी इस बात के ऊपर यकीन ना आए, इसीलिए आप लोग प्लीज जाके खुद देखिएगा, क्योंकि होता है ये कि सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है बाय द वे? पहले तो मुझे ये बताइए, कोई एक भी बच्चा स्पीकर ऑन करके मुझे बताए कि मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी सर, बिल्कुल Yes, sir, क्लियर। you are audible. ओके, परफेक्ट। बच्चों, ये जो काम आज मैं आपको सिखा रहा हूं और ये जो काम हम करने जा रहे हैं, इसके पैसे मिलते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। आपको पता है लिंक्डइन प्रोफाइल लोग प्रोफेशनल्स से अपनी बनवाते हैं। फाइवर पे जाइए और जाके लिंक्डइन प्रोफाइल जरा लिखिए, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के कोई जो है वो 8,000 रुपए चार्ज कर रहा है, कोई 6,000 रुपए चार्ज कर रहा है, कोई 15,000 रुपए चार्ज कर रहा है। लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये जो आप आज के लिए ये जो काम हो रहा है और जो आपको मैं ये सिखा रहा हूं, यू कैन इजीली, वेरी इजीली कैपिटलाइज दिस मनी। अच्छा, ये होगा काम किस तरह से, वो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ये काम कैसे होगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ ये करूंगा कि आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा कि एक अच्छी प्रोफाइल में क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरह से इसके अंदर की जाती हैं, ठीक है। इसके बाद एक और सेशन आपका होगा, जिस सेशन का नाम होगा हाउ टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल सो दैट रिक्रूटर्स कैन सर्च यू इजीली। अब इस बात का क्या मकसद है? इस बात का मकसद ये है कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल रिक्रूटर्स की नजर में सबसे पहले कैसे आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल तरीन काम है। अब ये होगा कैसे? इस तरह से होगा, सब सारे बच्चे अपना अपना गूगल खोलें और सबसे पहला काम ये करें कि मेरा नाम टाइप करें गूगल पे। सिंपली लिखिए फहद कदीर। जैसे ही आप फहद कदीर लिखेंगे, दुनिया में कितने फहद कदीर होंगे वो सारे पीछे रह जाएंगे, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल सबसे टॉप पे आएगी। दिस इज व्हाई लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो लिंक्डइन की प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन बेस करती है उसकी रेटिंग के ऊपर, कि लिंक्डइन की प्रोफाइल की रेटिंग क्या है। देयर आर सर्टेन एसओपीज जिनको फॉलो करना होता है। आपको प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। वंस यू डू दैट, आप टॉप रिक्रूटर्स की नजरों में आना शुरू हो जाते हैं बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, इट्स सुनने में बड़ा सिंपल है बट इट्स नॉट इजी। जिंदगी में जितनी भी चीजें सिंपल होती हैं वो कभी भी आसान नहीं होती, ओके। ये बड़ा सिंपल है, समझना कि यार क्या है, कुछ भी नहीं है, टक टक करके नाम लिखेंगे आ जाएगा। ये कहने में आसान है, करने में बड़ा मुश्किल है, ठीक है। सो नाउ द फर्स्ट स्टेप इज, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और उसके बाद जो है वो मैं सबकी प्रोफाइल रिव्यू करूंगा एक एक करके, ठीक है जी। सो मैंने आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस, लेट मी नो व्हेन यू सी इट। डेस्कटॉप और विंडो, विंडो 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 विंडो, ओके, क्रोम टैब, ओके। जरा मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? No, sir. नहीं आ रही? यस सर, इट्स विजिबल। आ रही होगी भाई। आ Yeah, रही sir. है। तुम लोगों के सामने थोड़ा सा लेट आई हो। नजर आ रही है भाई स्क्रीन? जी जी। ठीक है। सो क्या नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? मेरा नाम नजर आ रहा है और सबसे ऊपर मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, फहद कदीर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, फिनिक्स कॉन्टेक्ट पाकिस्तान। फिर एक और फहद कदीर साहब है, सीनियर लीड डेव ऑप्स इंजीनियर नीसम, ओके। फिर एक और फहद कदीर साहब है कोई मिलिट्री कॉलेज में। फिर एक और फहद कदीर है
ओके, नीचे आते हैं फिर जी, क्रिकेट टीम में भी कोई स्ट्रीम फाद कदीर म्यूजिक अपलोड फाद कदीर फैडी खान, देयर आर लॉट ऑफ पीपल. Excuse me, sir, we can't hear you. I guess internet problem I got. Okay, guys, I guess there is some connectivity issues on his end. I'm calling him. Just please be patient. Thank you. आवाज आ रही है बच्चों सबको? जी सर, अब आ रही है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी. Okay, I'm sorry, मेरा connection drop हो गया था. I'm really sorry for that. I'm back Okay, online. अच्छा जी, it's fine. so the point is कि जी आपने देखा कि मेरी प्रोफाइल जो है वो लिंक गूगल के ऊपर सबसे टॉप पे आ रही है जब मेरा नाम आप लिखते हैं. आपकी आइडियली तरह की होनी चाहिए. और इस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के कितने पैसे मिलते हैं? कोई 15,000 देता है, कोई 10,000 देता है. डिपेंड करता है कि कौन बंदा कितनी अच्छी लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके देता है. ठीक है, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए पैसा कैसे कमाना है. एक तो आपने अपनी प्रोफाइल अच्छी बनानी है डेफिनेटली. ठीक है, अपनी प्रोफाइल को सबसे पहले ऑप्टिमाइज करना है जैसे मैंने की. ठीक है, उसके बाद आपने लोगों को ये काम करके देना और आपने इस काम के पैसे कमाने. ओके, राइट. लेकिन ऑब्वियसली इस काम को करने के लिए पहले इसको सीखना पड़ेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम देखते हैं कि आज हम किस किस की प्रोफाइल में क्या क्या चीजों को बेहतर बना सकते हैं और क्या क्या चीजें जो है वो बेहतर होती हैं. सो मेरे पास प्रोफाइल में सबसे पहले नाम है किरण शौकत का. नाउ लेट्स सी हु इज किरण शौकत. ओके, सो मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं दोबारा. जब बच्चों स्क्रीन शेयर हो तो मुझे जरूर बताइएगा, सो दैट एवरीवन शुड बी ऑन द सेम पेज. आप लोगों को क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप जो है वो पूछ सकते हैं. एक बच्चा कह रहा है मेरी आवाज कम आ रही है. क्या सबको आवाज कम आ रही है मेरी? मैं तो वैसे बड़ा ऊंचा बोलता हूँ. नहीं सर, मुझे No, sir. clear है. नहीं आ रही. चले, अच्छा जी, जब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही तो आप मुझे बताइएगा. आ रही है बच्चों स्क्रीन नजर या नहीं आ रही? आ रही है. ओके, सो मेरी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले यू कैन सी देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, अस्मा. लॉगी कोर्स में उसकी जॉब हुई है. शी वाज अ बायोमेडिकल इंजीनियर, बट ऑब्वियसली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जॉब्स नहीं होती. सो उसने एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया और उस सॉफ्टवेयर हाउस में शी इज अ एसईओ एग्जीक्यूटिव, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव है. और वो उसने जी अपनी सैलरी डाली है, कह रही है फर्स्ट सैलरी ऑफ माई लाइफ. कितनी सैलरी है वही जरा देख लेते हैं. 5, 10, 15, 20 को मेरे ख्याल में वो 22-25 हज़ार रुपए के करीब नजर आ रहा है कि शायद इसकी सैलरी है. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द पोस्ट विच वी कैन सी.
Now what we will see is the first profile of Kiran Shaukat. तो देखते हैं जी किरण शौकत। सबसे पहले तो ये मैं भूल गया चेक करना, किरण शौकत यहाँ मौजूद भी है या नहीं है, अदरवाइज मैं किरण शौकत की प्रोफाइल नहीं चेक करूंगा। किरण शौकत, इफ यू आर हियर, प्लीज ओपन योर माइक एंड टेल मी दैट यू आर हियर। We have allowed mics for everyone, so you can unmute yourself and respond. मेरी वॉइस क्लियर है अगेन? आयशा बताइए जरा। जी सर, जी। अच्छा, अगर अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वॉइस में लैग है तो मैं अपना कनेक्शन चेंज करके देख लेता हूँ, मे बी आवाज बेहतर हो जाए, और अगर नहीं है तो इट्स फाइन। सर टोटली सही है, आप सही आ रही है सर। सही आ रही है जी सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। अच्छा भाई, किरण शौकत मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो आई एम सॉरी, किरण शौकत की प्रोफाइल के ऊपर मैं बात नहीं कर सकूंगा, मैं बात करूंगा। ओके आयशा, कैन वी हैव अ डिफरेंट वे, लाइक अगर हम ऐसा करें। अच्छा, शायान हाशमी है यहाँ पे, मैं बच्चों के नाम लेता हूँ, अगर आप लोग हैं तो मुझे बता दीजिए, आपकी प्रोफाइल देख लेंगे। शायान हाशमी है यहाँ पे? ओके, अहमद अली है यहाँ पे, सैयद मुजम्मिल सर होगा हम यहाँ ये पे, कर क्योंकि सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे Yes, sir, प्रेजेंट हैं वो present. अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के लिंक्स यहाँ चैट में शेयर कर दें और आप फिर उनको देख लें अच्छा एक काम करो बच्चों, चैट में इंस्टेड ना ऑफ शेयर गोइंग करना, थ्रू उसकी ऑल वजह ऑफ से देम। चैट बहुत तेजी से Sir, उतर Sayyid निकल Muzammil जाएगी। present. आयशा कुद्दूस को शेयर कर लो जी, मुजम्मिल है यहाँ पे मौजूद, राइट? तो लेट्स डिस्कस द प्रोफाइल ऑफ मुजम्मिल। ओके ओके जी, मुजम्मिल साहब की प्रोफाइल खुल गई है हमारे सामने। ओके, मुजम्मिल साहब जो हैं वो उन्होंने एक बड़ी अच्छी पिक्चर अपनी लगाई हुई है, और इट्स अ नाइस पिक्चर बाय द वे। अब जरा इसकी प्रोफाइल का रिव्यू करते हैं। इसकी पिक्चर का जो कवर पेज है उसके ऊपर इसने एक आईसी की पिक्चर लगाई हुई है, ओके, विच इज फाइन, बट यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव दिस एज वेल। कैसे कर सकते हैं? कैनवा की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे जाके लिंक्डइन कवर पेज सेलेक्ट कीजिए, उसके ऊपर आप अपनी मर्जी से कस्टमाइजेशन कर सकते हो और करके आप यहाँ पे लगा दें जो कवर पेज आपको या आपके विजन को या आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता हो। मिसाल के तौर पे सैयद मुजम्मिल की बात करते हैं तो ये कहता है अपने बारे में, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, ओके, जिमको इंटरनेशनल कराची, आईसेक इजिप्ट एक्सचेंज पार्टिसिपेंट, जनरल सेक्रेटरी एट IEEE हाईटेक, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, जूनियर ईयर इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। ओके, अब ये जो कहलाती है, दिस इज कॉल्ड योर टैग लाइन, ठीक है? इसको आपने बहुत केयरफुली डिजाइन करना है या इसको लिखना है, डिपेंड करता है कि व्हाट यू आर हेडिंग टू। अब देखो, आपने इस मेंटालिटी से अप्रोच करना है, यू हैव टू गो इनटू द शूज ऑफ योर प्रोस्पेक्ट रिक्रूटर। अब मिसाल के तौर पे मुजम्मिल कहता है जी मैं जाना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल सीमेंट इंडस्ट्री में। चलो सीमेंट इंडस्ट्री भी बहुत स्पेसिफिक है। मुजम्मिल कहता है कि मैं जाना चाहता हूं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी है, ठीक है? अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले अगर किसी को सर्च करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे वो इस पे लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल वो रिक्रूटर लिखता है कि जी पीएलसी ऑटोमेशन आनी चाहिए, ओके फाइन, ओके टीम लीड या लीडरशिप या मैनेजमेंट ट्रेनिंग हमें बंदा चाहिए, या हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास कंट्रोल सिस्टम्स की नॉलेज हो, ठीक है? डिपेंड करता है आप किस पोजीशन पे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा होना चाहिए इंजीनियर बाय प्रोफेशन। अब कौन सा इंजीनियर? मे बी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। सो ये यहाँ पे लिखना चाहिए इसको कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, और जिस ईयर में पास आउट हो रहा है आगे उसका लिख दे, फॉर एग्जाम्पल 2024 वट एवर। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने बारे में बताना है आप हैं कौन, ओके फाइन।
इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आ गया। अब उसके बाद ये लिखेगा एक्सपीरियंस्ड इन, मे बी अभी इसने रिसेंटली इस बच्चे ने एक इंटर्नशिप की थी सप्लाई चेन की, एक्सपीरियंस्ड इन टेक्निकल प्रोक्योरमेंट। ओके फाइन। अब जब इसने लिखा ना एक्सपीरियंस इन टेक्निकल प्रोक्योरमेंट, तो अब जो बंदा भी इसकी प्रोफाइल यहां देखेगा उसे पता होगा अच्छा यार इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी है, इसको टेक्निकल प्रोक्योरमेंट का भी पता है। ठीक है, अब इसके लिए दो जॉब्स ओपन हो गई, एक इसको प्रोक्योरमेंट साइड पे भी भेज सकते हैं, एक इसको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर तो ये है। अब इसने आगे आगे ये लिखेगा एक्सपर्टीज इन पीएलसी प्रोग्रामिंग, मे बी, तो आगे एक्सपर्टीज इन इसने लिखा पीएलसी प्रोग्रामिंग। इस बात का मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर किसी को चाहिए और साथ उसको ये भी चाहिए कि उसको पीएलसी की प्रोग्रामिंग भी आती हो, तो यहां पे लिखेगा एक्सपर्टीज इन पीएलसी प्रोग्रामिंग। आगे लिखेगा अगर इसको इंडस्ट्री 4.0 या आईओटी पे कोई काम करना है या किया हुआ है, तो लिखेगा इंडस्ट्री 4.0 या आईओटी एंथुसियास्ट, या लिखेगा वर्कड ऑन आईओटी प्रोजेक्ट्स। ओके गुड। उसके बाद आप ये फिर उसके बाद ये लिखेगा कि जी लीडर बाय चॉइस, या ये लिखेगा कि जी ओके आईसेक इजिप्ट पार्टिसिपेंट एक्सचेंज, जो भी ठीक है, जनरल सेक्रेटरी भी लिखेगा। तो ये जो दो है ना, इजिप्ट एक्सचेंज पार्टिसिपेंट जनरल सेक्रेटरी, ये इस चीज को डिफाइन करती है कि ये बच्चा जो है पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज्यादा मैनेजरियल और मैनेजमेंट एक्टिविटीज का भी पार्ट है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ टिपिकल वो जीपीए की बत्ती के पीछे भागने वाला बच्चा नहीं है। ओके ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद फिर ये आगे लिखे कि एस्पिरेंट या एस्पायरिंग या एस्पिरेंट इन द फील्ड ऑफ, जो जो आप जिस तरफ जाना चाहते हो। ठीक है, सप्लाई चेन की फील्ड अच्छी है। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी फील्ड है लड़कों के लिए, सेल्स इंजीनियरिंग या टेक्नो कमर्शियल सेलिंग। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं। डिपेंड करता है, आपने अपनी टैगलाइन इस तरह से लिखनी है कि उसके अंदर मल्टीपल जॉब्स कवर हो रही हो। जब वो कीवर्ड को देखे आपका कोई भी बंदा जो आपका रिक्रूटिंग मैनेजर है, तो उसको ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपको मिल रहे हो। ठीक हो गया। अब जरा नीचे आते हैं। अच्छा जी, थोड़ा नीचे आते हैं, कह रहे हैं जी टॉक्स अबाउट में टेक्नोलॉजी। जी अब देखो जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये देखो सर मेरे sorry to हिसाब में interrupt, आपकी सप्लाई चेन स्क्रीन मैनेजमेंट क्लियरली विजिबल नहीं है, ब्लरी आ रही है। ब्लरी आ रही है। एक काम करते हैं, मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज करके देखता हूँ, शायद ये मसला हल हो जाए। ओके, आप इंटरनेट लोगों को थोड़ा कनेक्शन की वजह से। सा मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल। जी मैंने अपना कनेक्शन चेंज किया, मुझे बताइए कि इज इट वर्केबल नाउ? यस सर। यस सर। ठीक है, आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है? यस सर। ओके ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये कहलाते हैं आपके हैशटैग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हैशटैग्स आपकी प्रोफाइल को डिफाइन करने के लिए। हैशटैग में इसने लिखा है मुजम्मिल ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है।
इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, नहीं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ओके फाइन, ठीक है। इसके बाद जो इसके बाकी 3 हैशटैग्स है ना, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जाया जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज आपको कोई भी टेक्नोलॉजी के वर्ड से जो है वो सर्च नहीं करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ड से आपकी प्रोफाइल को कोई सर्च नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से करेगा डेफिनेटली। अब आपको 3 अपने हैशटैग्स चेंज करने हैं। यहां पे आप ये लिख सकते हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट या टेक्निकल प्रोक्योरमेंट, या अब आप लिख सकते हैं कंट्रोल या ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। ये आपकी मर्जी, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक हो गया? नीचे चलते। इसके बाद देखिए, आपकी ये टैगलाइन ठीक हो गई, आपकी ये जो हैशटैग्स हैं, ठीक है, ये ठीक हो गए। फिर जो अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी प्रोफाइल समरी। अगर आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो उसके अंदर आपकी समरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, अब समरी कैसी होनी चाहिए? जी सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, आपकी स्क्रीन अभी भी क्लियर नहीं है। अच्छा, अभी भी क्लियर यस नहीं है सर, screen? अभी भी कुछ इशू आ रहा है। ये यस सर, क्लियर नहीं है अभी तक। टीम्स पे इशू तो नहीं है कहीं ये? क्योंकि गूगल मीट पे ऐसा कभी भी इशू नहीं आया। सर अब क्लियर हो गई है। क्लियर हो गई। अभी अब ओके क्लियर सर, सर। अभी सही है। अच्छा, क्लियर हो गई है स्क्रीन। सो मेरे ख्याल में शायद थोड़ा सा लैग है, आई थिंक। नहीं सर, लैग नहीं है, थोड़ा सा वो ब्लर ब्लर साइड है। अच्छा, अभी अभी स्क्रीन क्लियर है, बताओ। अभी भी ब्लर है सर। सर अब क्लियर हो blur हो रही है जाती है, सर। फिर ब्लर हो जाती है। अच्छा, एक काम करते हैं। ओके, डू वन थिंग, मेरी स्क्रीन को छोड़ें। आयशा, आप बच्चों की प्रोफाइल खोलें और मैं आपसे कहता रहूंगा इसको नीचे करें और मैं बताता रहूंगा। लेट्स सी प्रॉब्लम, अगर आयशा को हो सकता है इंटरनेट अच्छा हो तो आयशा की करवा देंगे हम, ठीक है बेटा? आयशा, ओके। आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग। आप खोलें जरा प्रोफाइल और लेट्स डू इट विद यू। मुजम्मिल की प्रोफाइल खोलो और अबाउट में आना, ऑलराइट। क्योंकि ये ब्लरिंग वाला इशू ना पहले कभी आया नहीं। मैं आई एम यूजिंग टीम फॉर द फर्स्ट टाइम। सर बाज़ औक़ात वीडियो स्ट्रीमिंग में बैंडविड्थ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, इस वजह से ब्लर हो जाता है। यार लेकिन मैं टीम्स उसमें मीट पे भी तो करता हूँ, उस पर कभी ऐसा इशू नहीं आया। यस सर। सर टीम्स का कोई मैनेजर नहीं है ना, तो इसी वजह से शायद टीम्स का कोई मैनेजर वगैरह नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। डाउनलोडिंग मैनेजर भी नहीं है इसका, वो हैंडलिंग मैनेजर भी नहीं है। अच्छा, मुझे इस बारे में नहीं पता। बहरहाल मीट के ऊपर मेरा जो एक्सपीरियंस है हमेशा बड़ा अच्छा गया है। और मीट जो है वो गूगल मीट के ऊपर सिर्फ एक इशू है कि 100 से ऊपर बच्चे जो है ना वो आ नहीं सकते। अगर उसमें आप 100 से ऊपर लेके जाते हैं तो यू हैव टू जनरेट 2 लिंक्स, ठीक है। दिस इज द ओनली इशू विद गूगल मीट, अदरवाइज गूगल मीट बहुत अच्छा है। यस सर। ठीक है, सो आयशा, वी आर वेटिंग फॉर यू टू शो द प्रोफाइल ऑफ मुजम्मिल, और मुजम्मिल की प्रोफाइल को देखते हैं। देखो बच्चों, ये हो सकता है कि आज फिर सारे बच्चों की प्रोफाइल्स रिव्यू ना हो पाए, बट जरूरी नहीं है कि सबकी प्रोफाइल्स रिव्यू हों भी। आपने सिर्फ और सिर्फ ये समझना है और देखना है कि दूसरों की प्रोफाइल में क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूं और उसको आपने अपनी प्रोफाइल में इंप्लीमेंट कर देना है, सिंपल। आयशा बेटा, ये जो मैसेजिंग वाला टैब है इसको नीचे ले जाइए। यस सर, नाउ इट्स क्लियर सर, ठीक है, फाइन। टू सम अच्छा जी, एक्सटेंट। नाउ अब मुजम्मिल तुम्हें भाई अपनी प्रोफाइल समरी चेंज करनी है, ठीक है। किस तरह से चेंज करनी है? तुम्हारी प्रोफाइल समरी जो है, जो अबाउट है, इसके अंदर थ्रू आउट तुम्हारी वो चीजें आनी चाहिए जिन चीजों के ऊपर तुम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। अब मिसाल के तौर पे हार्ड वर्किंग, कमिटेड, पंचुअल, सेल्फ मोटिवेटेड, ओके दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये चीजें अबाउट में नहीं आएंगी। इसके अंदर ये आएगा तुम्हारी प्रोफाइल की समरी कि तुमने जो है तुम्हारा जो बेसिकली करियर है, स्टार्ट हुआ फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इंटर्नशिप। अपनी स्टोरी लिखनी है बेसिकली, इट शुड बी सॉर्ट ऑफ स्टोरी और बुलेट पॉइंट्स में कि तुम क्या क्या तुम्हारी प्रोफाइल के अंदर क्वालिटीज हैं,
क्या क्या तुमने सीखा। मिसाल के तौर पे recently you have done an internship in XYZ organization, and in that internship the hallmarks were blah 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 bullet points में these, and soon after this great learning experience, ठीक है, फिर तुमने you made yourself ready for a new challenge, and that you have taken from joining XYZ internship, ठीक है। अब तुम्हारे पास तो लिखने को बहुत कुछ है, तुम आईसेक में भी रहे हो और तुम पता नहीं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट रहे हो, अपना एक्सपीरियंस आपने लिखना है समरी में, ठीक है, और उसको कोशिश Okay, करना sir. बुलेट पॉइंट्स में लिखें, ठीक है। फिर थोड़ा सा आप नीचे जाते हैं फीचर्ड के टैब में, जो फीचर्ड का टैब आपको इसका नजर आ रहा है, आयशा भी इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाएगी तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ देखो, अब जी इसने एक पोस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस पोस्ट इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज आपने ये देखना है कि लिंक्डइन जो है ना वो फेसबुक से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। एक आपने तस्वीर एक लगाई पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की, जिसके आगे एक जहाज बना हुआ है। अगर मैं मुजम्मिल के साथ होता जब ये काम ये कर रहा था, तो मैं ऐसा कहता कि बेटा अपनी जहाज के साथ खड़े होके एक बहुत अच्छी पिक्चर लो और फिर एक अच्छा सा पोस्ट बनाओ कि had a wonderful experience of my life at PSC कामरा। ओके, अगर ये भी नहीं लिखते हो तो फिर ये लिखो PSC कामरा वंडरफुल प्लेस फॉर ग्रेट लर्निंग, फिर तुम नीचे अपना पोस्ट लिखो, ठीक है। तो लोग ये बेसिकली लिंक्डइन के ऊपर एक चीज का हमने ख्याल रखना है कि लोग दो तीन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, एक क्वालिटी कंटेंट, दूसरा आपकी अचीवमेंट, तीसरा आपकी आप ये समझ लो कि आपकी सिचुएशनल पिक्चर आपने जरूर अपनी लगानी है। ये मैं बता दूं, अगर आप करके देख लो, वो पोस्ट जिसके ऊपर पिक्चर नहीं होती, ठीक है, और वो पोस्ट जिसके ऊपर पिक्चर होती है, जमीन आसमान का फर्क होता है एंगेजमेंट के अंदर, ठीक है। अब आप जरा थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं तो मुजम्मिल की एक दो पिक्चर ऐसी थी जो मैंने पास्ट में देखी जो मुझे बहुत पसंद आई, बट उस वक्त इसकी एक तो लिंक्डइन की प्रोफाइल इतनी इंप्रूव नहीं थी, दूसरा इसने उसको उस तरह से पोस्ट नहीं किया था। थोड़ा सा इसको जो कोने पे एरो आ रहा है ना आपका, आयशा बेटा इसको जरा क्लिक करें। ये इसके बहुत अच्छे पोस्ट थे पास्ट के अंदर, आगे लेके जाइए। 21 फीचर्ड पोस्ट है, इतने सारे इसने यहाँ पे लगाए हुए, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा ना जिसके अंदर मैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अब ये देखो, अब इसने ये जो इसके पोस्ट है ना, इसमें ये जो SDG9 इंडस्ट्री मोटिवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज अ वंडरफुल पोस्ट। इस तरह के आपको पोस्ट करने हैं, पिक्टोरियल पोस्ट और बहुत अच्छे। फिर इसने ये इजिप्ट में शायद गया था या पता नहीं कहाँ गया, किसी जगह पे इसने ये मास्क में जो इसकी पिक्चर है खड़े होके एक पिक्चर ली इसने। अगर ये पिक्चर बहुत ज्यादा इसकी रेटिंग हो जाती अगर ये किसी मॉन्यूमेंट पे खड़ा होके ले रहा होता, ठीक है। आमतौर पे सर्टिफिकेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा लाइक्स नहीं आते, उसकी वजह ये है कि सर्टिफिकेट्स के ऊपर आपकी मोमेंटम, आपकी मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर्स नहीं होती, ठीक है। नीचे जाइए, नीचे जाइए आयशा बेटा। बच्चों मैं बहुत इन डेप्थ प्रोफाइल डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों ने प्लीज अपनी प्रोफाइल्स को उस तरह से ठीक करना है, ठीक है। दिस इज द रीजन एक एक प्रोफाइल पे मैं इतना टाइम लगा रहा हूं, अदरवाइज आई कुड हैव गॉन लाइक दिस, ओके ओके फाइन चलो अगली बढ़ो अगली, इस तरह नहीं कर रहा हूं मैं बहुत टाइम लगा रहा हूं। इसका रीजन ही ये है कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल ठीक करना है, क्योंकि अगला सेशन जो होगा ना उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये सिखाना है कि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से होगी, आपकी प्रोफाइल गूगल की रैंकिंग में ऊपर कैसे आएगी, और आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा कैसे कमाना है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। फीचर टैब होगा। अच्छा मुजम्मिल, इसको ये जो सर्टिफिकेट जो जिनके अंदर तुम्हारी तस्वीरें नहीं है ना, वो सारे यहाँ से हटा देना, और मैं तुम्हें बताऊंगा इनको किसी और जगह पे होस्ट कैसे करते हो, जब हम ऑप्टिमाइजेशन के सेशन पे जाएंगे तो उसमें बताऊंगा। फिलहाल इनको भी किसी और जगह पे सेव करो और सिर्फ वो पिक्चर लगाओ जिसमें तुम्हारी ये जो फेस है और ये जिस तरह खड़े हो ये नजर आ रहा है।
ये बहुत इम्पैक्ट देते हैं। आप याद रखना बच्चों, तुम्हारे ये जो सर्टिफिकेट्स है ना, ये इतना, देखो एक चीज याद रखना, फीचर्ड के टैब पे अगर आप जाएं तो वो अलाउ करता है 6 से 7 पिक्चर्स को। अब उसमें अगर तुम अपने सर्टिफिकेट्स लगा लो या तुम इस तरह की पिक्चर्स लगा लो। मैंने जिस दिन पहले दिन मुजम्मिल की प्रोफाइल देखी थी, आई वॉज वेरी हैप्पी, यार ये बच्चा बड़ा अच्छा है। मेरी इससे कभी बात नहीं हुई थी, बट जब इसने मुझे प्रोफाइल का कनेक्शन भेजा और मैंने इसकी देखी तो मुझे लगा कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये कि यार ही इज वेरी इंगेज इन वेरी गुड एक्टिविटीज, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अपनी लाइव पिक्चर्स की रिप्रेजेंटेशन करें, नंबर 1। दूसरी बात ये, बच्चों प्लीज प्लीज प्लीज, तुम सब मेरे भाइयों और बहनों की तरह हो, एज अ एल्डर ब्रदर, ये मेरी एडवाइस अपने पास लिख लो, प्लीज सोसाइटीज को ज्वाइन करो, प्लीज सोसाइटीज को ज्वाइन करो, ठीक है। क्योंकि सोसाइटीज को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत कुछ होता है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर जिंदगी में किसी अच्छी कंपनी में जाना चाहते हो तो ये सोसाइटीज ही होती है जो आपको लेके जाती हैं। अगर आप इन चीजों में नहीं जाओगे, अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन की अच्छी प्रेजेंटेबल नहीं बनाओगे, तो होगा क्या कि आप छोटी 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 जॉब्स के लिए आप जाओगे और वहां पे आपका मुकाबला किससे होगा? डिप्लोमा होल्डर से, ठीक है। अगर डिप्लोमा होल्डर से अपना कंपटीशन करना है ना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो प्लीज सोसाइटीज को ज्वाइन करें, ठीक है। आप सब के सब किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से जरूर होंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज में सोसाइटीज जरूर होंगी। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है, मुझे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर सोसाइटीज पिक एंड चूज करती हैं। फाइन, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड दिस, सोसाइटीज पिक एंड चूज करती हैं। तो आप लोग दी इनक्रेडिबल्स के नाम से एक लिंक्डइन के ऊपर एक बड़ी अच्छी वर्चुअल सोसाइटी बनी है, आप उसको ज्वाइन कर लें। dgskills.pk उसको ज्वाइन कर लें। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज नाउ डेज ऑन लिंक्डइन। मुझे कोई बच्चा, ये अगर आज आज के दौर में अगर कोई बच्चा मुझे कहता है कि सर मैं किसी सोसाइटी का इसलिए पार्ट नहीं हूँ कि सोसाइटी वाले मुझे लिफ्ट नहीं कराते, मैं आपको बताऊं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। आप लिंक्डइन पे जाएं, इतने ढेरों ढार फ्री कोर्सेज हो रहे हैं। आज के ये पिछली दफा ये जो वाई वालों ने, नस्ट वाई वालों ने इवेंट करवाया था, इनके उन्होंने सर्टिफिकेट दिए, तो भाई आप लगाओ लगाओ सर्टिफिकेट, किसने मना किया? इस सेशन की पिक्चर ले लो भाई, सेशन की पिक्चर लो, साथ अपनी पिक्चर लो, लैपटॉप की लगा लो ऊपर, किसने रोका है? प्लीज अपने आप को रिप्रेजेंट करें लिंक्डइन के ऊपर। लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लड़कियों के लिए, जो बच्चियां हैं खास तौर पे, उनको मैं कहता हूं बेटा आप लोग टेक्निकल सप्लाई चेन के कोर्सेज करें। अभी लिंक्डइन के ऊपर उन्होंने, जिमको वालों ने पोस्ट की है सप्लाई, टेक्निकल सप्लाई चेन, सारी लड़कियों को उसको अंदर, मतलब लड़कों को तो करना ही चाहिए, मुजम्मिल भी उसका पार्ट अभी बनेगा, लेकिन बच्चियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़कियों को इंडस्ट्री के अंदर कोर टेक्निकल साइड पे नहीं रखा जाता। लेकिन सप्लाई चेन में तो जाई सारी लड़कियां रही हो, टेक्निकल सप्लाई चेन में लड़कियों को ही रखा जाता है। आप करें, किसने रोका है? ठीक है। अच्छा, एनीवे मुजम्मिल की प्रोफाइल जो है वो मेरे ख्याल में कंप्लीट कर दी आयशा ने। ऑल दो उसके अंदर काफी कुछ है अभी भी बताने को, बट क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, और प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, क्योंकि अब ये जो चीजें ना बेसिकली ये फ्रंट एंड से हैं, इसके बाद की जो चीजें ना वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, जो कि एक सेपरेट सेशन है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का। 2 घंटे का सेशन होगा भाई प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का, और प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के 2 सेशंस होंगे। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट समथिंग जो कि मैं आपको चुटकी में सिखा दूं। 4 साल की इंजीनियरिंग करते हो, 4 साल की, ठीक है। ये इंजीनियरिंग तुम्हारी एक तरफ और लिंक्डइन की प्रोफाइल एक तरफ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और टू बी ऑनेस्ट, लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत कम लोग हैं जो फ्री में सिखाते हैं। आप जाके देखें, एक बंदा है हमाद सिद्दीकी के नाम से, आप जाके देखें, लोग लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर सिखाने के आपसे पैसे लेते हैं, 6,000 8,000 रुपए लेते हैं कि जी आप ये इसका मेरा कोर्स पढ़ा हुआ है, लिखो जरा हमाद सिद्दीकी। आयशा बेटा जरा लिखो, अनीस की प्रोफाइल डिस्कस करते हैं, सर्च बार में लिखो हमाद सिद्दीकी। हाँ जी, इन साहब को लिंक्डइन कोच जरा सर्च करें इन साहब को, ठीक है जी। ये भाई साहब लिंक्डइन के कोच हैं और इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, ठीक है। नीचे आए जरा, इनकी प्रोफाइल आप लोग देख लें जी, ठीक है। फायर अप योर लिंक्डइन प्रोफाइल विद हमाद सिद्दीकी, ठीक है, ऊपर जाइए।
और जब आप इनकी जो है वो पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे ख्याल में $55 ये लेते हैं आपको वो कोर्स देने का, जिस कोर्स की आप वीडियोस देख के अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि अगर आपको कोई चीज़ जो है वो फ्री में मिल रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस चीज़ की कोई वर्थ नहीं है। वो आपको इसलिए फ्री में मिल रही है कि आप लोगों को भी पुश किया जा रहा है कि प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर आओ, इस चीज़ के ऊपर आओ, बिकॉज ये सारी सर्विसेज पैसों की मिलती हैं। ठीक हो गया। लिंक्डइन कोच, भाई लिंक्डइन के प्रॉपर कोच हैं लिंक्डइन के ऊपर जो मार्केट कर रहे हैं इस चीज को कि भाई आए, मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल इंप्रूव करवा के देता हूं। ठीक है, ओके, अनीस रहमान की प्रोफाइल है। ठीक है जी, वेरी गुड, बड़ी अच्छी पिक्चर इसने लगाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, रिमार्केबल अचीवमेंट। ये अनीस रहमान यहाँ मौजूद है, सीनियर टेक्निकल सेल इंजीनियर एट। यस सर। अनीस आप यहाँ पे मौजूद है, ग्रेट, यस सर। वेरी गुड। देखो भाई, अनीस क्या, देखो अच्छा, अब अनीस जॉब कर रहे हो यहाँ पे बीकन एनर्जी में, छोड़ दी है? सर लीन ऑटोमेशन में इंटर्नशिप कर रहा हूँ अभी। लीन ऑटोमेशन में इंटर्नशिप कर रहे हो, तो उसको वो अभी काम कर रहा है या अब्बास जो है? एक्चुअली वो कोई और अनीस रहमान था, जी जी ये सर, वाली वो हाँ प्रोफाइल है। सीनियर मैनेजमेंट में, वो अभी दुबई गए हुए हैं सर। अच्छा, दुबई गया हुआ है, ठीक है, ठीक हो गया। ये जी जी लीन सर। ऑटोमेशन, लीन ऑटोमेशन मेरा कस्टमर है, अब्बास नाम है इसका, लीन ऑटोमेशन वाले का ना। ठीक जी है, जी और लीन ऑटोमेशन में जी मेरा एक सर, वो और, हमारे यूनिवर्सिटी के ही है सर। अच्छा कॉमसेट का ही है, अच्छा 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 अच्छा, जी जी, गुड 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 हमसे गुड गुड। यहीं से तो पढ़ा अब्बास हुआ। से कभी पूछना मेरे बारे में, ही नोज मी वेरी वेल। ठीक है, एनीवे, ओके, सो यू आर ठीक है सर। वर्किंग एज ए इंटर्न। देखो भाई अनीस बेटा, सबसे पहली जो चीज ठीक करनी है वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर ठीक करनी है। सेकेंडली, कोई बच्चा भी जी सर। ओपन टू वर्क वाला ये नहीं लगाएगा। लिंक्डइन के ऊपर एक बात याद रखना, प्लीज बच्चों, कभी भी किसी को ये मत बताना कि तुम जॉब के लिए डेस्परेट हो, लोग तुम्हें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ये खाली अनीस के लिए मैसेज नहीं दे रहा मैं, ये सब बच्चों को कह रहा हूं कि बच्चों, लिंक्डइन पे कभी किसी को ये मैसेज ना करना कि जी मुझे जॉब चाहिए, नंबर वन। दूसरी बात ये, कभी भी अपनी प्रोफाइल पे ये मत लिखना सीकिंग अपॉर्चुनिटीज, लुकिंग फॉर न्यू जॉब्स। लोग आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि हर बंदा कहता है कि भाई मेरे पीछे जॉब के लिए नहीं आओ। अगर किसी ने आपको जॉब देनी होगी ना, तो वो खुद आपकी प्रोफाइल की एक्टिविटीज देखेगा और वो खुद आपको अप्रोच करेगा। लिंक्डइन प्लेटफॉर्म बना ही इसलिए, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं बना कि आप लोगों को जाके मैसेज करते रहें कि जी मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। ठीक है, ये चीज बहुत केयरफुली रखनी है। आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी होनी चाहिए जिसको देख के लगे कि हाँ यार ये बंदा वाकई बहुत जबरदस्त है। अच्छा, आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये सबसे पहले अजीज ये काम करना, ये ओपन टू वर्क करना, नीचे यहाँ पे एडिट में जाओगे, इसको बार को जी रिमूव कर सर। देना। ठीक है, जी सर, अब रिमूव यहाँ कर ओपन दूंगा। टू वर्क है ना, यहाँ पे आप अपने रोल्स डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ जी यहाँ मैं ओपन टू वर्क हूँ। लेकिन यहाँ अगर करोगे तो बोलेंगे अरे यार इसको जॉब चाहिए इसलिए मुझे मैसेज कर रहा होगा, इसलिए मुझे कनेक्ट कर रहा होगा। ठीक हो गया। ठीक दूसरी है सर। बात ये कि ये तो अपनी तुम टैगलाइन बिल्कुल जैसे मैंने मुजम्मिल की बताई है इस तरह एक अच्छी सी टैगलाइन बनाओ। जी सर। ठीक है, टैगलाइन बनाने के बाद आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने मुझे नहीं पता कि ये जो वाई वाले बच्चे हैं इनके पास इतना टाइम है या नहीं है, आई कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि अगर आप लोग अपने स्क्रीन शॉट जो है वो भेजें इन बच्चों को, और फर्दर जो है वो मैं इवेल्युएट करके मे बी किसी, मैं ऐसा, शायद मैं ऐसा करूं कि आप लोगों का एक ग्रुप बना दूं और उन बच्चों को बता दूं कि जी वो बच्चे मुझसे प्रोफाइल डिस्कस कर लें 8-10 बच्चों की, और मैं बता दूं कि यार इस तरह से ठीक करवा लो प्रोफाइल। वी विल सी व्हाट वी कैन डू। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है इस वाई ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों के ऊपर कि ये कितना इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे भी बेचारे बिजी होंगे। डिस्पाइट दैट ये इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इन वेबिनार्स को अरेंज करवा रहे हैं। सो आप लोग इसको कोशिश करें कि जितना अच्छा समझ सकते हैं समझ लें। अपनी ये प्रोफाइल की टैगलाइन ठीक कर लेना, नीचे तुमने हैशटैग्स डिफाइन करने हैं, वो ठीक कर लेना। अच्छा, एक और आप लोगों को एक चीज बता दूं, लिंक्डइन की जो पूरे ट्यूटोरियल्स है इसके ऊपर मेरा यूट्यूब चैनल आने वाला है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, कोई मसला नहीं है, आगे चल के मेरा यूट्यूब चैनल होगा, उसके अंदर ये सारे ट्यूटोरियल्स होंगे कि आपकी जो प्रोफाइल है वो किस तरह से होनी चाहिए, हैशटैग्स किस तरह से डिफाइन करने हैं, ओपन टू वर्क में क्या लिखना है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लो।
अभी जो मैं कह रहा हूँ उसके बाद मेरे ट्यूटोरियल्स देख लेना। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, 1 हफ्ते बाद इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा। तो वहां से आप सबको को तकरीबन 12-15 के करीब ट्यूटोरियल्स होंगे। उनको देखने के बाद तुम सब बच्चों की प्रोफाइल माशाल्लाह इतनी अच्छी बन जाएंगी कि यू गाइस विल से कि यार नाउ वी कैन से दैट ठीक है सीवी हमारी इतनी अच्छी नहीं है बट हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल्स बहुत अच्छी है। ओके, अनदर थिंग इज सबसे अच्छी आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, शुड बी वेरी वेरी प्रोफेशनल। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? वेरी वेरी प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। अब प्रोफेशनल पिक्चर कैसी होती है, जैसे मिसाल के तौर पे मुजम्मिल ने लगाई। इसके अलावा प्रोफेशनल पिक्चर कैसी होती है भाई, मैं आपको बता सकता हूँ। मेरी प्रोफाइल पिक्चर देखो जरा आयशा, मेरी प्रोफाइल पे जाओ, बल्कि एक काम करो तलहा वकार की प्रोफाइल पिक्चर पे चले जाओ। देखो तलहा वकार, हाँ जी, ये देखो बच्चों ऐसी पिक्चर होनी चाहिए। ये देखो अब कितनी जबरदस्त उसने पिक्चर लगाई है, बिल्कुल स्माइलिंग फेस, आईज इन द कैमरा, और इतना ही आपको प्रोफाइल पिक्चर एग्जैक्टली ऐसी ही लगानी है, आपका फेस आना चाहिए। सेकेंडली वो क्या कह रहा है, उसने जो कवर पिक्चर अपनी लगाई है उसमें कह रहा है डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर, और आगे लिख रहा है मिस्टर टी, और अपने उसने कोड बना के लगा दिया। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी प्रोफाइल पिक्चर है। आप सब लड़कों की प्रोफाइल पिक्चर ऐसी ही होनी चाहिए, इससे हट के नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वापस बैक जाए इस बच्चे की प्रोफाइल के ऊपर, तो आज ये समझ में आ गया कि प्रोफाइल पिक्चर कैसी होगी। ओके, इसी तरह की होनी चाहिए, फेस के ऊपर फोकस, आईज इन द कैमरा, स्माइल ऑन द फेस, दैट्स इट। आई डोंट नो ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। सर हो रहा है गेस, हो रहा है, यू हो गेस रहा है। और यू श्योर हो रहा है? ये तो ऊपर वाई से वाले बच्चे बता सकते हैं। ऑप्शन आ रहा है ना मीटिंग रिकॉर्डिंग का। अच्छा वो हाँ हाँ बिल्कुल, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम लोग अच्छी बात ये कि इस मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो भी दोबारा सुन सकते हो। अच्छा जी, अनीस की प्रोफाइल डिस्कस हो गई, थोड़ा सा नीचे जाएं आयशा बेटा। अनीस तुम ये एक्सक्यूज मी चीजें सर। चेंज कर लेना अपनी प्रोफाइल के अंदर, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर, कर दूंगा सर। ओके, थैंक यू। ओके, दिस इज वेरी गुड। आई डोंट नो ये क्या है जी, सेकंड वर्कशॉप, सेकंड इंटरनेशनल वर्कशॉप ट्रेंड्स ऑन ब्ला ब्ला ब्ला, ये तुम्हारी अपनी पिक्चर है? जी सर, मैं हूँ और सर हमारे टीचर हैं सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है, इस तरह की आप पिक्चर्स लगाया करें इसके ऊपर। ओके, ठीक है जी, नेक्स्ट प्रोफाइल प्लीज। और हाँ, वन मोर थिंग भाई, बच्चों अपने कनेक्शंस बढ़ाएं लिंक्डइन के ऊपर, अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को ऐड करें। जी सर, थैंक यू सर फॉर रिव्यूइंग माय यू आर प्रोफाइल। वेलकम। हु इज नेक्स्ट? ओके, द नेक्स्ट स्टूडेंट इज उरूज शौकत। बच्चों ये उरूज शौकत जो बच्ची है, शी इज वेरी एक्टिव ऑन द लिंक्डइन। आज इस बच्ची ने मुझे सुबह मैसेज किया था कि सर मेरी प्रोफाइल को जरा प्लीज रिव्यू कर लें, ताकि जो है वो मैं अपनी जो मेजर करेक्शंस है वो कर सकूं। सो आई सेड कि बेहतर ये है, जब मैंने इसकी प्रोफाइल देखी मैंने कहा बेहतर ये कि सब बच्चों के सामने हो ये बात, ताकि उरूज की प्रोफाइल से बाकी बच्चे भी लर्निंग कर लें कि अगर किसी किस तरह की प्रोफाइल है तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है। ओके, अच्छा जी, उरूज की प्रोफाइल को जब हम देखते हैं तो अगेन पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात हो रही है, जिसका मतलब है कि ये होगी डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। अच्छा, अब उरूज शौकत की प्रोफाइल पे आते हैं। इसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है दैट इज ब्लर। अब वो ऑब्वियसली लड़कियों के मामला जरा डिफरेंट है। ये बच्ची जो है वो ऑफ कोर्स इसकी पिक्चर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शी डजंट वांट टू पुट अ पिक्चर जो कि एक ट्रेडिशनल पिक्चर होती है। सो ये हमेशा निकाब वगैरह में शायद रहना चाहती होगी, इसलिए इसने इस तरह की पिक्चर लगाई है। सो इसकी प्रोफाइल पिक्चर बिकॉज ऑफ हर कल्चरल एंड वैल्यूज, नो कमेंट्स ऑन दैट, वो उसकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। ठीक है जी, नीचे आते हैं। उसके बाद ये कह रही नस्ट 2022, दिस इज समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, नस्ट 2022 कोई सर्च नहीं करेगा, ठीक है, इसको हटाना है। उसके बाद शी इज राइटिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फाइन। इजारत वर्डप्रेस फ्रंट एंड डेवलपर, ओके। सो इजारत लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट
वर्डप्रेस फ्रंट एंड डेवलपर, ओके, फिर आप दोबारा हैशटैग वो उस पर सेपरेटर डालें। इसके बाद आप आगे 4-5 कम से कम ऐसे कीवर्ड्स लिखें जो आप काम उस उधर कर रही हो, इजारत पे जो काम कर रही हो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई सर्च करे तो वो आपके यहां से कीवर्ड्स पिक कर ले। इसके बाद आप अपना जिंक फैक्टर भी डिफाइन करो, डबल डैश डालो और लिखो कि तुम इसमें ये लिख सकती हो, आई डोंट नो कि तुम्हारा नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है, बट तुम इसमें ये कुछ भी तुम इस तरह के लिख सकती हो कि एस्पायरिंग a new challenge or aspiring experience in maybe mobile app development or mobile app development enthusiast, कुछ भी कर सकते हो। ये मत लिखना कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ इस फील्ड में। आपने बात यही करनी कि मुझे इस फील्ड में जॉब चाहिए, लेकिन उसको इतना घुमा के करना है कि किसी को ये फील ना हो कि आप जॉब ढूंढ रही हो। फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे आए ना, तो यहाँ पे आपको लिंक्डइन ये कहता है कि जी आप सिर्फ आप ये बता दें किन रोल्स के लिए आप ओपन है, और अगर आप उस पर एक चेक मार्क डाल दें तो सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटर्स को नजर आता है, ठीक है। और इवन दो अगर आप ओपन नहीं है तो यू कैन से प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है, XYZ जिन एरियाज के लिए, जिन जॉब रोल्स के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, खत्म बात। आप उसको ये ना करें एक्टिवली लुकिंग फॉर, आप लिखें प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन चीजों के लिए। तो बात ये कि लिंक्डइन के ऊपर ना हमेशा चीजें घुमा फिरा के लिखनी है, लेकिन बात वही हो रही है, सबको जॉब चाहिए, सबको बिजनेस चाहिए, सबको सर्विसेज चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आए। अच्छा जी, अब उरूज शौकत की जो प्रोफाइल है इसके अंदर हैशटैग्स भी मिसिंग है, वो इसको इसके अंदर डालने हैं। थर्डली इसकी प्रोफाइल में मुझे फीचर्ड का टैब नजर नहीं आ रहा, वो इसको डालना है। सेकेंडली हाईलाइट में कह रहे यू बोथ वर्क एट IEEE नस्ट, इसका मतलब है उरूज शौकत और आयशा कुद्दूस एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ओके फाइन, हियर वी गो। यहाँ पे इसका फीचर्ड का टैब आ गया। अच्छा, अबाउट में electrical engineer at PEC NUS, graduating in June 2022, aim to build a career in STEAM organization where I can prove myself delivering। अच्छा भाई, समरी आपको चेंज करनी है। जिस दिन मैं लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात करूंगा उस दिन मैं आपको 4 से 5 वेबसाइट्स बताऊंगा जहां पे आप अपनी अच्छी करियर समरी डेवलप कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे याद दिलाइएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसकी लगाएंगे? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयशा कुद्दूस की नहीं लगा सकते, ये बेचारी वैसी ओवरलोडेड होती है। किस बच्ची की लगाएं, या किस वाई में कौन और बच्चा या बच्ची इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करेगा, ये बताओ आयशा कुद्दूस के अलावा। Nobody is ready maybe. Okay, it's सर आप रिपीट करेंगे क्या आपको? बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लिंक्डइन नेक्स्ट सेशन में जब हम लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो कोई एक बच्चा वाई जो ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों की नस्ट की, उसमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि मुझे याद दिलाए कि मुझे बच्चों को ये बताना है कि लिंक्डइन की जो जो अबाउट अस में जो समरी होती है, देयर आर 3 to 4 वेबसाइट्स जहां से आप हेल्प ले सकते हैं, अपनी अच्छी समरी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा मे बी। सर मैं कर दूंगी। ओके, व्हाट्स योर नेम? वासिफा उमर। ओके, वासिफा उमर, यू आर द ओके, आपने स्टार्ट किया था सेशन, ओके गुड। अच्छा जी, फीचर्ड में आए तो उरूज शौकत ने फीचर्ड में अपने कुछ सर्टिफिकेट्स लगाए हैं। फिर ये कही अल्हम्दुलिल्लाह गॉट एक्सपीरियंस सर्टिफाइड एंड स्टाइपेंड, ओके फाइन, आई एम प्लीज टू नाउ सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय, ठीक है, इसने अपने सर्टिफिकेट्स लगाए हुए विच इज गुड इनफ, ठीक है। और नीचे आइए, नीचे 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 एक्टिविटी में, ओके फाइन, इसने अपना एक पोस्ट किया है। एक्सपीरियंस में अगर आप देखें तो अच्छा बच्चों, आपने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस का टैब है इसके अंदर आपने जो भी इंटर्नशिप्स की है ना, उसके अंदर जितने भी आपने काम किए हैं वो आपने डिटेल्ड में लिखने हैं, क्योंकि यहीं से आपकी प्रोफाइल कीवर्ड्स में सर्च होगी। जब हम डेफिनेटली अगेन, अब ये किसका पार्ट है? ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। क्यों ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है? इस वजह से कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज जब भी आपकी होगी वो होगी आपके कंटेंट से, याद रखना, आपके कंटेंट से प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी, ठीक है। तो आपकी लिंक्डइन पे 3 तरह की स्ट्रेटजीज बनती हैं, ये याद रखना। पहली स्ट्रेटजी वो होती है जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल की रेटिंग 10 out of 10 होती है, ठीक है, एक चीज। सेकेंडली जो चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो उसकी होती है ऑप्टिमाइजेशन,
कि हाँ जी प्रोफाइल ठीक बन गई। ओके ठीक कैसे बनी जी? कवर पिक्चर अच्छी लगी हुई है, प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लगी हुई है, सारी चीजें मौजूद है। ओके फाइन। दूसरी चीज पे ऑप्टिमाइज है या नहीं है? ऑप्टिमाइज भी है, प्रोफाइल भी अच्छी बनी। तीसरे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी, जो सबसे मुश्किल काम है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लिंक्डइन पे ऐसा क्या कंटेंट पोस्ट करें जिससे क्या हो, आपके फॉलोअर्स बढ़े, जिससे लोग आपको लाइक करें, जिससे लोग आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुझसे हेल्प ले रहे होते हैं और मैं बच्चों की हेल्प कर भी रहा होता हूँ। आपको नजर आ रहे होंगे बहुत सारे बच्चे मुझे मेंशन भी कर रहे थे। एक बच्चे का नाम लिखो अनस मुमताज। आयशा प्लीज अनस मुमताज लिखिए जरा। कौन से वाले? अनस मुमताज, हाँ यही है, ठीक है यही है। ये देखो, इस पोस्ट पे क्लिक करो जरा, तुम इसकी प्रोफाइल को देखते ही समझ जाओगे कि मेरे स्टूडेंट होगा। ठीक है, नीचे आ जाओ। अच्छा जी, थोड़ा सा ऊपर जाएं तो इन्होंने एक पोस्ट किया है, इन्होंने जब सिमेंस ज्वाइन की भाई साहब ने, उस पोस्ट पे जाइए जरा, थोड़ा सा ऊपर जाएं। पोस्ट पे जाओ ना बेटा, जो इसने अपनी पिक्चर लगाई थी सिमेंस की, थोड़ा सा ऊपर जाएं। एक्टिविटी, ऊपर जाएं ऊपर जाएं ऊपर जाएं। ओके मेरे ख्याल में हाँ, पोस्ट पे जाओ, यस पोस्ट पे, एग्जैक्टली यहाँ पे अनस मुमताज के पोस्ट पे जाएं आप। पोस्ट इसका तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? थोड़ा नीचे जाओ। वन ऑफ द रीजन इज कि तुम्हारे साथ ये बच्चा कनेक्टेड नहीं है। ये एग्जैक्टली ये। अब तुम अगर देखो ये क्या दिख क्या रहा है अपने बारे में, कह रहा है व्हेन ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है, जब ख्वाब पूरे हो जाते हैं। अब जरा सी मोर में जाइए तो सब्जेक्ट लाइन ही बड़ी अच्छी लिखी। बाय द वे बहुत सारे बच्चों को कंटेंट नहीं लिख के दे रहा होता हूँ। नीचे जाओ, सी मोर करो। अच्छा जी, कह रहा है बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी गॉड आई फाइनली जॉइंड सिमेंस पाकिस्तान। ओके गुड। कह रहा है आई फील प्लेयर टू शेयर दिस ग्रेट न्यूज that I have started my career with one of the top leading multinational in the world, which is of course Siemens. I always dreamt to be the part of Siemens Pakistan. I want to thank all the person who helped me in the hiring process in the best possible way. Thank you Sir Fahad Kadir for mentoring me throughout the career counseling and career guidance. ठीक है जी, ये भाई साहब ने एक पोस्ट की और उसके बाद इन्होंने सिमेंस के सामने खड़े होकर एक पिक्चर ली। ठीक है, यू गाइस वोंट बिलीव इस बच्चे के सिर्फ और सिर्फ 150 कनेक्शन थे। इस पिक्चर और इस पोस्ट को लगाने के बाद यू कैन सी 1445 फॉलोअर्स है इसके। ठीक है, क्यों हुए? इतना अच्छा पोस्ट इसने किया और ते मार 4.5 फॉलोअर्स ही फॉलोअर्स। नाउ दिस इज कॉल्ड कंटेंट स्ट्रेटेजी। नाउ अब आयशा जरा जाइए एक और बच्ची की प्रोफाइल। अब एक मैंने लड़के की प्रोफाइल दिखा, हम आपको एक लड़की की प्रोफाइल दिखाते हैं। लिखे उसका नाम था रमशा अथर खान। RAMSH रमशा अथर खान, हाँ ये ठीक है। अब तुम डायरेक्ट इसके पोस्ट पे क्लिक कर देना। ये तुम्हारे पास क्या कनेक्टेड है? मे बी शी इज ओके। अभी तुम ये देखो, लुक एट हर प्रोफाइल। सप्लाई चेन इज लाइक नेचर। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएं तो उसका वो पोस्ट कहाँ गया जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स थे? नीचे आओ नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, एक्टिविटी में आओ। ओके हाँ सर, पोस्ट देखो इसके नीचे आए जरा। ये दिस इज द पोस्ट। इस पोस्ट को क्लिक करो जिसके अंदर से फॉर्म मुझे टैग किया। लगता है आयशा का भी नेट स्लो हो गया। ओके
नाउ टेक अ लुक एट दिस पोस्ट। एक इसने अपनी कंप्यूटर के सामने बैठ के एक पिक्चर लगाई, साथ पीछे आर्टिस्टिक मिलीनियर लगाया। कहती क्या है, रिमिनिसिंग अ फ्यू मंथ्स बैक व्हेन आई वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनडी, आई वाज सर्चिंग जॉब ऑन ट्रेडिशनल सोर्सेज व्हिच लेड मी नोवेयर। ठीक है, आई अटेंडेड अ वेबिनार ऑन यूजिंग लिंक्डइन फॉर हंटिंग बाय फहद कदीर। ठीक है, इसने मुझे टैग किया। रियली ग्रेटफुल टू यू, ऑनेस्टली दिस दैट वाज अ गेम चेंजर इन माय लाइफ। लिंक्डइन इज द अल्टीमेट प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल कैरियर इंडीड। Within a month, I got offers. ये देखो, I got offers. इसको ऑफर नहीं आई, इसको ऑफर्स आई। And hereby, and I hereby delighted to announce that I have joined one of the fastest growing textile in Pakistan, artistic millionaires in supply chain department. Further, I am thankful to Filza Rahman on smooth boarding process. Blah blah blah. अब आप जरा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए। आप इस बच्ची के पोस्ट के ऊपर लाइक्स देखें, विच आर मोर देन 1000। ठीक है, और इस एक पोस्ट की वजह से शी हैज गॉट सो मेनी फॉलोअर्स। सिर्फ एक पोस्ट की वजह से बेइंतहा फॉलोअर्स मिल गए इसको। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर कंटेंट स्ट्रेटजी, जो कि आपको देखो 1071 लाइक्स आए। किरण शौकत ने भी लाइक किया हुआ है। ठीक है, 1071 लाइक्स और 224 कमेंट्स आए हैं। ठीक है, सो बच्चों, दिस इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ कंटेंट स्ट्रेटजी। नाउ अब एक और तुम्हें दिखाता हूं। आज ही एक बच्ची ने पोस्ट किया, जो कि तो इसी नस्ट वाई का पार्ट थी, लेकिन ना हाजरा फारूक, आज ही उसने पोस्ट किया, मैंने देखा। ठीक है, कैन यू प्लीज टाइप दिस, हाजरा फारूक लिखो जरा। यहाँ ये बच्ची है। ओके, प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव एट रैकेट्स एंड बेनकाइजर में इसकी जॉब लगी है, और शी डज अ लॉट ऑफ पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। क्यों? उसकी वजह ये कि जब एक दफा आप लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं ना, और जब आपको इतने सारे लाइक्स मिल जाते हैं, तो फिर आपको मजा आने लग जाता है, फिर आपको शौक चढ़ जाता है कि भाई मैं पोस्ट करता हूँ। नाउ यू सी, अब ये इसने आज एक बच्ची ने पोस्ट किया, कह रही है कि 8 घंटे पहले इसने कोई कह रही सीक्रेट्स लर्न आफ्टर ज्वाइनिंग माय फर्स्ट जॉब। अब यहाँ पे इसने एक अपनी अच्छी सी एक पिक्चर लगा दी बैठी हुई, और इसने 10-15 बातें लिख दी हैं कि जी मैंने 3 महीने में ये सीखा है। राइट, नाउ दिस इज हर कंटेंट। इसने एक सर्टेन कंटेंट लिखा और पोस्ट कर दिया। राइट, सो उसके ऊपर इसको जो है वो कितने में, ख्याल में 118 लाइक्स अभी तक इसके उसके ऊपर आए। ठीक है, नाउ लेट्स कितने 115, हाँ 115 समथिंग लाइक्स आए हैं इसके ऊपर, और लोगों ने इसके अंदर 10 कमेंट्स भी किए हैं। अच्छा, वीकेंड पे पोस्ट नहीं करना चाहिए, सैटरडे संडे को। उसकी वजह ये कि लिंक्डइन इज अ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, और अगर आप वीकेंड पे करते तो बहुत ज्यादा लोग ना उसके ऊपर ना लाइक्स करते ना कमेंट्स करते, फिर आपका पोस्ट जो है ना वो गुजर जाता है। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड कंटेंट स्ट्रेटजी। नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट्स, और इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी जितनी अच्छी होगी ना, उतने ज्यादा आपको फॉलोअर्स मिलते रहेंगे। और कंटेंट स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, जैसे मैं आपको दिखा दी कुछ एग्जांपल्स की, इस तरह से बनेगी आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी। ठीक है जी, हु इज नेक्स्ट? नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज नेक्स्ट? ओके, मोहम्मद यहया वक्कार। ओके फाइन, मेरे ख्याल में मुझे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस इसको करनी है, अगर ये बच्चा यहाँ मौजूद है। सो ही शुड नो कि ऑब्वियसली अपनी जो टैगलाइन है वो इम्प्रूव करनी है, नीचे हैशटैग डिफाइन करने हैं, पिक्चर शुड बी गुड, कवर पिक्चर शुड बी गुड। नीचे आइए, इसके कनेक्शंस बहुत कम है, 39 कनेक्शंस हैं। कनेक्शंस मिनिमम 1000 होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, लिंक्डइन अलाउ करता है 100 कनेक्शंस पर वीक। ठीक है,
ये भी ख्याल करना है। ये नहीं आपने तबाही फेर दी लोगों को, जा जाके उनको रिक्वेस्ट भेजी, वो आपकी प्रोफाइल ही ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ओके ठीक है। फीचर्ड का टैब भी मिसिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं है। सो बच्चे, याया बेटा इसको ज़रा, याया वकार साहब इसको ठीक कर लीजिएगा। हुज नेक्स्ट? ओके, अनुषा सफदर। अनुषा सफदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लब एनईडी की बच्ची। ये बच्ची क्या यहाँ मौजूद है? अनुषा सफदर, इफ यू आर हेयर, सिंपल चैट बॉक्स में एक मैसेज लिखते हैं। ठीक है जी, ये कहती है कि सेट योर गोल्स हाई, डॉट सब ठीक है, कवर पिक्चर ठीक है। अच्छा, अगेन इस किस्म की पिक्चर्स बच्चों नहीं लगानी आपने, जिसके अंदर मतलब ये पिक्चर फेसबुक के लिए अच्छी है, ये पिक्चर ऑफ कोर्स इंस्टा के लिए अच्छी है, बट लिंक्डइन के लिए ये पिक्चर ठीक नहीं है। फिर अगेन ये जो ओपन टू वर्क की स्लाइड है इसको हटाना है। थर्ड ईयर स्टूडेंट, अच्छा अब आप ये देखें कि थर्ड ईयर स्टूडेंट आपने नहीं लिखना, आप सिंपल लिखें। अब ये मेरे ख्याल में कंप्यूटर सिस्टम्स की है ना बच्ची, तो शी कैन राइट लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आगे इन्वर्टेड कॉमा और जिस ईयर में पास आउट हो रही है वो लिखते हैं, वो काफ़ी है। अ ट्रू पैट्रियट, अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रंट एंड डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, ये सब चीज़ें यू नीड टू चेंज इट बाय द वे। ठीक है, इसको आप कर लेना चेंज। नीचे जो है वो आपको हैशटैग्स भी इसके अंदर मेंशन करने हैं। ठीक है, ओपन टू वर्क को हटा देना। नीचे अबाउट में समरी और पोस्ट बेहतर करनी है। एक्टिविटी में आइए बेटा ज़रा। 121 फॉलोअर्स हैं इसके, और फीचर्ड का टैब भी मिसिंग है। तो ये बेसिक ये चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। इसके बगैर आपकी प्रोफाइल की जो लिंक्डइन है वो खुद रेटिंग गिरा देता है। आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, लिंक्डइन इटसेल्फ आपकी प्रोफाइल की रेटिंग गिरा देगा, और जैसी प्रोफाइल की रेटिंग गिरी आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। हु इज नेक्स्ट? ओके जी, अब्दुल रहमान साहब आ जाएं। ओके, अब्दुल रहमान साहब जो हैं वो मेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और इनकी प्रोफाइल जो है वो इनके 225 कनेक्शंस हैं भाई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 2022, और उसके बाद पूरी टैगलाइन मिसिंग है, उसको इसको डालना चाहिए। नीचे हैशटैग्स होने चाहिए इसकी प्रोफाइल में। थोड़ा सा नीचे है तो अगेन वही फीचर्ड का टैब, दिस पिक्चर शुड बी चेंज, ऑफ कोर्स द प्रोफाइल पिक्चर शुड बी चेंज। नीचे आइए। ओके, इसने अभी कोई रिसेंटली मेरे ख्याल में कोई वेबिनार वगैरह लिया था दी इनक्रेडिबल्स का, उसका इसने जो है वो सर्टिफिकेट लगाया, विच इज़ फाइन। और इंटर्नशिप की है, रिकमेंडेशन में किसी ने इसको रिकमेंड भी किया हुआ है। अच्छा बच्चों, वन मोर थिंग, रिकमेंडेशंस आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द लिंक्डइन प्रोफाइल के जो ऑप्टिमाइजेशन है, उसके अंदर आपकी ये रिकमेंडेशंस भी होनी चाहिए, और साथ साथ रिकमेंडेशन के साथ आपने लोगों को दी और लोगों ने आपको दी। ठीक है, आगे चलिए। हु इज नेक्स्ट? Sir, someone is asking in the chat box कि ये feature tab कैसे activate करना है? फीचर टैब को एक्टिवेट कैसे करना है? अब फीचर टैब को एक्टिवेट कैसे करना है उसका तरीका ये होता है, आयशा अपनी प्रोफाइल पे जाओ, होम पेज पे जाओ। ओके, होम पेज पे जब आप जाएंगे इधर आयशा इसको क्लिक करो, ऐड प्रोफाइल सेक्शन। तुम्हारी प्रोफाइल पे फीचर्ड है आयशा, ये नहीं है? नहीं है। फीचर ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाओ। तुम्हारा क्रिएटर मोड भी ऑफ हुआ है, तुमने इसको भी ऑन करना है, और नीचे जाओ। अच्छा जी, फीचर्ड का टैब यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन में होता है। यहाँ पे इसके अंदर जब आप जाके इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टैब्स मिल जाएंगे जो भी आपके इसके अंदर यूज नहीं हो रहे।
ठीक है, तो वहीं से आपने उसको जाके ऐड कर लेना है। सो दिस इज द एरिया वेयर फ्रॉम योर प्रोफाइल फीचर सेक्शन। अब इसमें रिकमेंडेशंस भी आ रही है, कोर्सेज भी आ रहे हैं। अब ये देखो, ये इसका फीचर्ड का टैब है। यहाँ पे जैसे ही इसको प्लस को क्लिक करेगी, फायजा जहरा आगा। फायजा जहरा आगा के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इनक्रेडिबल्स टीम, जिनका मैंने आपको बताया था कि एक लिंक्डइन के ऊपर एक ऑनलाइन सोसाइटी, आप जो भी इसको ज्वाइन करना चाहे करें। ये लाइक मतलब ये हर वेबिनार में माशाल्लाह से मौजूद होती है एंड शी इज वेरी एक्टिव, राइट। हर इंटर्नशिप्स का ये पार्ट आई डिडंट नो यहाँ पे आई होगी, बट शी स्टिल हियर एनीवे। द प्रोफाइल पिक्चर इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। इस बच्ची की अपनी रिलीजियस वैल्यूज के हिसाब से इसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा दी है, विच इज गुड, ठीक है। लड़कियों के लिए देयर आर एक्सेप्शंस, ओके। जो इसके कवर पिक्चर उसके अंदर इसके कंप्यूटर की पिक्चर लगाई हुई है। अब मैं इसको ये कहूंगा कि बेटा ऐसी पिक्चर लगाओ जो तुम्हारे एक्सपीरियंस और जो तुम्हें काम आता है उसको डिपिक्ट करे, बिकॉज जब ये इसने पिक्चर लगाई इंटर्नशिप, अब ये 2-3 इंटर्नशिप्स कर चुकी है। नाउ शी हैज समथिंग अ लॉट टू डिस्प्ले ओवर। अच्छा जी, कह रही कंप्यूटर साइंटिस्ट सिस्टम आईओटी सिस्टम जिनको इंटरनेशनल रेडी फॉर इंटर्नशिप न्यू चैनल। अब इसको ये चेंज, उसकी वजह ये प्रोफाइल है इसकी, ये उस वक्त आज से 2-3 महीने पुरानी या 4 महीने पुरानी बनी हुई है, जब इसके पास कुछ भी नहीं था। अब आज इसको ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, बिकॉज इसने मेरे ख्याल में वो वाली इंटर्नशिप भी की है, टेक्निकल सप्लाई चेन वाली। सो शी कैन राइट लाइक टेक्निकल एक्सपर्टीज इन टेक्निकल प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर डाल के, अच्छा नाउ रिमूव दिस रेडी फॉर इंटर्नशिप एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना। नीचे है टॉक्स अबाउट में प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं लिखना, कंप्यूटर साइंस नहीं लिखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं लिखना, स्किल डेवलपमेंट नहीं लिखना, ऑटोमेशन ठीक है। यहाँ पे जो आपके हैशटैग्स होने चाहिए वो हैशटैग्स होने चाहिए जिसके ऊपर जिसके ऊपर आपकी प्रोफाइल सर्च हो जाए। जैसे मुजम्मिल ने लिखा हुआ था सप्लाई चेन मैनेजमेंट, राइट। तो जिन एरियाज में आपने जाना है आपको वो चीजें यहाँ लिखनी है। नीचे आइए। नाउ फायजा जहरा की प्रोफाइल में एक इशू जो है, उसके फॉलोअर्स बहुत कम है, 802 फॉलोअर्स हैं, जो कि बहुत कम है। आयशा, इस बच्ची को, ये जो फायजा जहरा आ गए, शी मस्ट डू सम गुड पोस्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी बच्चों ने की हैं, जैसे बाकी बच्चों ने की, टू गेन मोर फॉलोअर्स, या फिर इसको लोगों को खुद कनेक्ट करना पड़ेगा मैन्युअली। अगर आप आयशा कुद्दूस की भी प्रोफाइल देखें तो यहाँ पे देखें 46 नोटिफिकेशंस यहाँ मौजूद है। इसका मतलब ये कि इसने काफी लोगों को एंगेज किया हुआ है, इसको 11 लोगों ने कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, इसको प्रोफाइल अपनी समरी को ठीक करना है भाई, दिस इज वेरी लेस। नीचे आओ, फीचर्ड के टैब में ये कह रही है एन अमेजिंग एंड मेमोरेबल जर्नी ऑफ माइंड, ठीक है। नीचे आओ। अच्छा एक बात याद रखना बच्चों, कोशिश करना टेक्निकल पोस्ट्स ना डालो, उसकी वजह टेक्निकल पोस्ट आउटरीच है। लिंक्डइन के ऊपर अगर आप पोस्ट डालें तो अपनी अचीवमेंट्स डालें, अपने थॉट्स डालें, लोगों को कुछ चीजें शेयर करना चाहें तो वो कर लें, अपने सर्टिफिकेट्स डालें। अच्छा वन मोर थिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो उसने डाली है 3 महीने पहले, आई जस्ट अर्न अ स्किल बैच फॉर ऑटोकैड, हु इज नेक्स्ट। होती है, जब आपके पास स्किल बैच आ जाता है तो लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल का एक रैंक और बढ़ा देती है। तो इसकी प्रोफाइल का एक रैंक हायर है नॉर्मल लोगों से, क्योंकि इसके पास एक स्किल बैच मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें तो फायजा के जो जितने भी पोस्ट हैं वो सारे ज्यादातर टेक्निकल पोस्ट हैं, जिसकी वजह से इसके पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट बहुत कम है, ठीक है। दिस इज द रीजन। तो फायदा ये अब तुम्हें अपने पोस्ट के कंटेंट जरा डिफरेंट रखने हैं। दूसरी बात ये कि 17IN04 वाला कोई बच्चा या बच्ची वो कह रहा है सर माय लिंक्डइन प्रोफाइल हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टेम्परेरीली, व्हाट शुड आई डू। भाई ये इसलिए होती है जब आप बहुत ज्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देते हैं तो लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, 1-2 दिन बाद खुद ही खुल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है जी।
यहाँ पे इसने अपनी इंटर्नशिप डाली है जिमको की। फर्दर जो भी इसको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले वो डाले। उसके बाद अब जिमको की इंटर्नशिप डालने के बाद आपने ना डिजी स्किल्स की इंटर्नशिप भी करें आप। वो आपको डिजिटल मार्केटिंग वगैरह बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। 3-4 और इंटर्नशिप्स इस वक्त बहुत ज्यादा फेमस हैं लिंक्डइन के ऊपर, वो जरूर करें, उनको यहाँ ले। और आपको अपने एक्सपीरियंस में ना यहाँ पे अब आपको लिखना है कि आप सप्लाई चेन इंटर्न रही तो आपने उसमें क्या किया, प्रोजेक्ट टीम लीड रही तो आपने उसमें क्या क्या काम किए। अब ये बच्ची क्योंकि इनक्रेडिबल्स का भी पार्ट है, इसको वो भी ऐड करना चाहिए इसके अंदर, ठीक है? तब जाके आपकी प्रोफाइल बेहतर होगी, मजीद बेहतर होगी। ठीक हो गया? नेक्स्ट देखिए कौन है। ओके, मोहम्मद अरहम हैदर, ये बच्चा ऑलरेडी मेरा स्टूडेंट है बिकॉज इसको मैंने देखा हुआ है। ओके, एनईडी इंडस्ट्रियल केमिस्ट, गुड। फार्म को इंटर्न, डब्ल्यूडब्ल्यू डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल सीकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। भाई अरहम भाई, अपनी टैगलाइन बेहतर कर लेना। तुम्हारी पिक्चर ये अच्छी है बट अगेन अगर तुम्हारी ये पिक्चर स्माइलिंग होगी और तुम्हारे से फेस पे फोकस होगा, ये बहुत अच्छी हो जाएगी। कवर पिक्चर चेंज कर लेना, जिस जो चीज़ें तुम्हें आती हैं वो पीछे ऐड कर देना। 725 फॉलोअर्स हैं, प्लीज इसको इंक्रीज कीजिए, ठीक है? रेडिकली इंप्रूव कीजिए, जैसे भी है। अच्छा, हैशटैग डिफाइन है केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। दीज हैशटैग्स आर नॉट करेक्ट। आपने हैशटैग यहाँ पे वो डालने हैं जिसके ऊपर आपके जॉब या आपके जो सीकर्स है इंडस्ट्री के। एक काम किया करो, जो मिसाल के तौर पे ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट है ना, तो फार्मास्यूटिकल या जो भी डेजिग्नेशन तुम्हें मिलती है इंडस्ट्री में, उसकी जाके जॉब डिस्क्रिप्शन ढूंढो, उसके जो कीवर्ड्स है ना वो उठा के इधर डालो और अपनी प्रोफाइल में वो सारे कीवर्ड्स डालो, ठक करके तुम्हारी प्रोफाइल सामने आएगी। नीचे आओ। नीचे 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 भाई, आयशा कुद्दूस की आज सही जिम्मेदारी लगी हुई है। नीचे आइए। अच्छा, अबाउट में कह रहा है स्किल्ड इन लैब टेस्टिंग कम्युनिकेशन। नाउ इस अबाउट को ये थोड़ा सा इंप्रूव करेगा, बट फीचर्ड में देखो पिक्चर्स बड़ी अच्छी लगाई हैं इसने। यही करना है आपको। ऑल्दो ये पिक्चर इस बेचारे के पास सिर्फ 2 ही हैं जो इसने यहाँ पे पोस्ट की हैं, बट जब आपको पता चल जाए ना कि जी आपने इस तरह की पिक्चर लगानी, तो फिर आप जाके क्लिक करवा लें या क्लिक करवाते हैं इस तरह की चीजें। ठीक हो गया? नीचे आइए। ओके ओके ओके, ओके फाइन, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। जी सर एक क्वेश्चन था कि जब हम प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे एक बार आता है, उस पे लिखा होता है प्रोफाइल की स्ट्रेंथ, प्रोफाइल स्ट्रेंथ ऐसे बिल्कुल, करके, तो ठीक है। उसके अंदर वो डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी होती है। तो वहाँ पे हम अगर पूरी डिटेल्स फिलअप नहीं कर पाते तो क्या उसका कोई इशू होता है? देखो आपको वो 4 से 5 स्टेप्स बताता है प्रोफाइल स्ट्रेंथ के। उसमें आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रेंथ को 100% पे लेके जाना है, नंबर 1, ठीक है? वो बेसिक 3-4 चीजें आपको बता रहा था। अगर आप वो भी नहीं करेंगे तो लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल को बिल्कुल ही डाउनग्रेड कर देगा, ठीक है? वो तो लाजमी आपको करना है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स जो आपको करके अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, ऊपर लेके आना है, ठीक है? नाउ आई हैव जुहेब आई के नाम से देयर इज अ गाय, मैनेजर डेटा सेंटर फैसिलिटीज एट HBL,
ठीक है, हबीब बैंक लिमिटेड। दिस गाय सीम्स टू बी प्रोफेशनल, लगता है कि ये कहीं जॉब कर रहा है, क्योंकि मैनेजर है डेटा फैसिलिटीज, तो ही इज अ प्रोफेशनल, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। ओके, सबसे पहले जुहेब की जो है वो जो प्रोफाइल पिक्चर है दैट नीड्स टू बी लाइक व्हाट आई हैव सेड अर्लियर। ठीक है, उसके बाद जो कवर पिक्चर है उसके अंदर इस कवर पिक्चर को डिफाइन करना चाहिए कि डेटा सेंटर के अंदर जो एरियाज ये देख रहा है किन चीज़ों में इसकी एक्सपर्टीज है। चाहे ये अपनी एक और सर्कुलर पिक्चर लगा ले और आगे लिख दे कि जी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन दी सारी चीज़ें। उसके बाद अपनी टैगलाइन को इम्प्रूव करेगा ये। उसके नीचे बाद फिर ये हैशटैग्स लाएगा, कनेक्शन 500 है, इनको इनहेंस करेगा। नीचे आइए आयशा प्लीज। और दिस गाय इज फ्रॉम नस्ट। ओके, वन मोर थिंग विच आई वांट टू सी इज दैट के ओके ठीक है, अबाउट में अपनी अच्छा ये क्या कह रहा है, प्रोफेशनल पावर प्रोफेशनल एनर्जी ऑडिट्स। नाउ दिस इज वेरी गुड थिंग। आई डोंट नो ये स्टूडेंट ये बच्चा यहाँ पे मौजूद है या नहीं है, बट अगर ये यहाँ पे होता तो मैं इसको बहुत सारे कीवर्ड्स बता सकता था जो ये अपनी प्रोफाइल समरी में लिख सकता है। एनीवे इसने काफी सारे ये सर्टिफिकेट्स भी किए हुए विच इज वेरी गुड। नीचे आइए मजीद। Now his activity tab is also good. Now you see this is the difference between a student and a professional. This guy is a professional guy. That's why तुम देखो कि इसकी प्रोफाइल जो है उसके अंदर लाइक इसने काफी कुछ बेहतर किया हुआ है नॉर्मल स्टूडेंट से। ठीक है जी। नाउ हबीब बैंक में मैनेजर डेटा है। ठीक है जी, 11 महीने से वहां काम कर रहा है। नीचे आए, ही इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, फाइन फाइन। नीचे आए नीचे आए नीचे आए। ओके ओके ओके, काफी इसका एक्सपीरियंस है। मीमा ब्रदर्स में भी ये असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट्स रहा है। नीचे आइए। ओके, नाउ इस किस्म की अगर किसी की भी प्रोफाइल है ना तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके जो एक्सपीरियंसेस है उसके अंदर कंटेंट आना चाहिए, इसकी जो करियर समरी है उसको बेहतर होना चाहिए। इस जुहेब की प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज हो सकती है बिकॉज ही हैज अ लॉट टू प्रेजेंट। ठीक हो गया, नेक्स्ट प्रोफाइल प्लीज। सर इज इट पॉसिबल कि अब आप इंटर्नशिप का बता दें और yes, फिर हम जिन लोगों की रह गई है वो बाद में देखते हैं। हम अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं बच्चों। इट्स 10:30 नाउ, इट्स टू मच। अब इंटर्नशिप का ये है कि नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप जो कि अब तक जिनको से ऑफर हो चुकी है। एक सप्लाई चेन वाली जिसके अंदर इंजीनियर्स को ये सिखाया जाता है कि उन्हें सप्लाई चेन डिपार्टमेंट सप्लाई चेन को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी एक इंटर्नशिप जो कि पहले से चलती आ रही है, आईओटी एंड पावर सिस्टम्स। ठीक है, अगर आपको उस इंटर्नशिप के अंदर इनरोल होना है तो आयशा ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप के ऊपर आप को अपडेट मिल जाएगी कि पहला सेशन कब होगा। ठीक है, आप उस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा और उसके अंदर आपको जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन होगा आपको बता दिया जाएगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी तरीकेकार है इंटर्नशिप का, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, सारी चीजें उसके अंदर बता दी जाएंगी। अगली चीज ये कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जी हमारी उनकी ख्वाहिश होगी कि जी हमारी प्रोफाइल विजिट नहीं हो पाई। इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ट्यूटोरियल्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। आप इस सेशन को दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल इंडिविजुअली देखी जाए तो आपको करना ये कि प्लीज ये बेसिक चीजें जो मैंने बताई ना इन सबको करें। फिर मैं आपको मजीद गाइड कर सकता हूँ कि आपको ऑप्टिमाइजेशन की तरफ कैसे जाना है। ये ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, ऑप्टिमाइजेशन इज द सेकंड स्टेप। पहला स्टेप ये कि आपकी प्रोफाइल इस तरह की होनी चाहिए। आप चाहे मेरी प्रोफाइल जाके विजिट करें, ठीक है, आपको उसमें बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज द ऑप्टिमाइजेशन और उससे अगला नेक्स्ट स्टेप है कंटेंट स्ट्रेटजी का। ठीक है बच्चों, सो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले डेफिनेटली। एक्सक्यूज मी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर जिस तरह से सर मुझे जिस प्रोफेशन में जाना है ना, लिंक्डइन पे कोई ऐसा बंदा है सर जिसकी अच्छी प्रोफाइल है, काफी एक्टिव है, अच्छे एक्सपीरियंसेस है ना, और मतलब वो किसी अच्छे कंपनी में काम कर रहा है, तो सर क्या मैं उसकी प्रोफाइल के कुछ कीवर्ड्स वगैरह कॉपी करके अपनी प्रोफाइल में लिख सकता हूँ? जैसे टैगलाइन उसकी किस तरह से बनी हुई है हाँ, उस पूरी तरह की दुनिया मैं यही करती है लिखूं? भाई। आप लोगों की जाके प्रोफाइल देखें, अपनी मर्जी, आपकी फील्ड के जितने भी लोग हैं उनकी प्रोफाइल देखें, उनके कीवर्ड्स उठाएं, उनको अपनी प्रोफाइल में डाल दें, सिंपल। ठीक है सर,
और ठीक सर है ना? एक और बात मुझे पूछनी थी। सर मैं जैसे मतलब कि अब सर 2 जगह पे इंटर्नशिप में कर रहा हूँ ना, एक लीन ऑटोमेशन में और सर पीटी सेल में। वहां पे सर ठीक है, जो मेरे जो रोल्स हैं दोनों अलग हैं ना। आगे सर ठीक मैं है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल सेक्टर इस तरफ जाना चाहता हूँ। तो सर ठीक है। अभी उन दोनों को मैं किस तरह से लिंक्डइन पे मतलब कि हाईलाइट करूँ? इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। आप जब आप स्टूडेंट होते हैं ना, जी तो सर। देखो, बात याद रखना कि लोगों के तो करियर जो है वो 10 साल तक डाइवर्सिफाई होते हैं। ठीक है, आप तो फिर अभी स्टूडेंट हो। आप दोनों इंटर्नशिप जी कर लिखो, अच्छा लिखो, आपने दोनों में क्या क्या सीखा, प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स डालो। आपकी प्रोफाइल देखने वाले बंदे को ये पता चलेगा कि यार इसने 2 एरियाज में काम किया हुआ है। आप इसके पास दोनों का एक्सपीरियंस है। ये चाहे तो पीटीसीएल यानी कि डेटा कम्युनिकेशन की तरफ भी जा जी सकता है, चाहे तो ऑटोमेशन की तरफ भी जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कहाँ जाना चाहता है। अगर आप इस बंदे को देखें, ज़ोएब को, ही वाज अ ट्रेनी इंजीनियर इन अलाइड इंजीनियरिंग, यानी कि ये जनरेटर की कंपनी में रहा है, उसके बाद ये ऑटोमेशन साइड पे भी रहा है। ठीक है, तो जी मतलब सर। बात ये है कि आई मीन आपकी प्रोफाइल में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है जी, मेरे ख्याल में और फर्दर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। सो लेट्स कंक्लूड द सेशन। इंशाल्लाह बच्चों, आप लिंक्डइन के ऊपर ज़रूर एक्टिव रहें और जितनी भी इंटर्नशिप्स आ रही लिंक्डइन के ऊपर उसको ज्वाइन करें, अपने कनेक्शंस बढ़ाएं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि एक साथ ही आपने तबाही फेर दी, कनेक्शंस रिक्वेस्ट की, फिर लिंक्डइन ब्लॉक कर देगा। 20-30 दिन में मैक्सिमम बहुत है। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये जो IoT और पावर सिस्टम का जो इंटर्नशिप पे जिम को आ रहा है, ये कब स्टार्ट होगा सर, वर्चुअल? ये नेक्स्ट वीक से शायद स्टार्ट हो जाएगा। आपको बता दिया जाएगा ग्रुप के ऊपर कि कब स्टार्ट हो रहा है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी बच्चों, कुछ इंशाल्लाह सेशन के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, तो सर व्हाट्सएप के ग्रुप ये बताएगा में कि क्या कहते हैं, जिनकी प्रोफाइल रह गई है वो कब व्यू करेंगे? जिनकी प्रोफाइल रह गई है वो कब व्यू करेंगे भाई, ये गिला तो बहुत सारे और बच्चों को भी होगा, क्योंकि राइट नाउ तकरीबन 120 बच्चे थे जिनकी प्रोफाइल्स को व्यू करना था। लेकिन ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है कि सबकी हो सकेगी। आप कर ये सकते हैं कि आप जितनी भी मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको जो है वो उसकी आप ऐसा करें कि वीडियो की रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, उनको समझते हो आप अपनी अच्छी सी प्रोफाइल बना लीजिएगा। उसके बाद जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो ग्रुप है जो बनेगा, उसके अंदर जो लीड्स हैं उनको मैं असाइन कर दूंगा कि ये पैटर्न है, इस तरह की होनी चाहिए, सबकी प्रोफाइल रिव्यू कर लो। तो किसी ना किसी इंटर्नशिप का पार्ट बन जाएगी, उसमें आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली मैं किसी दिन रिव्यू कर लूंगा। ठीक है सर, बस आप ये रिकॉर्डिंग जो है ना वो क्या कहते हैं, जो इंटर्नशिप वाले ग्रुप बने हैं उसमें प्रोवाइड कर देगा। ओके, ये काम जो है ये वाई Hey guys, नस्ट what's up? नस्ट वाई वाले I'll बच्चों do का that. है। I'll do that. No ठीक है problem. जी, ये इस काम में चैंपियन है, आप लोग टेंशन नहीं लें। बहुत कोऑपरेटिव बच्चे हैं माशाल्लाह। और बच्चों, मैं आप सबको दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि आप आज जो भी सीख रहे हैं वो इन बच्चों की वजह से सीख रहे हैं। ये जो टीम है नस्ट वाई की, ये बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको खुश रखे और तरक्की दे। इन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड किया, जिसके अंदर आप लोगों को आपको अब ये चीज का एहसास कुछ अरसे बाद होगा, जब आपकी इंडस्ट्री के लोग आपसे पीछे होंगे और आप इंशाल्लाह उनसे आगे होंगे इन सारी चीजों में। मेरा मकसद यंग जनरेशन को फ्री में सिखाने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चे हमारे टेक्नोलॉजी में आगे जाएं और उन लोगों को compete करें और उस लेवल पे जाएं जहां पे जाके वो इंटरनेशनल लेवल पे compete करें सबको। ठीक है, तो इंशाल्लाह वन डे यू विल सी दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। हैविंग सेड दैट बच्चों, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज Sir, can सर, you please wait? थैंक यू सर। Sir. जी सॉरी। एक ग्रुप पिक्चर ले लेते जिन्होंने अटेंड अरे किया है ओ सेशन यस उनके यस साथ, यस वो यस हम सब बच्चों, लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिस सकते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आयशा ने कहा था कि सर एक ग्रुप पिक्चर लेनी है ताकि हम लगाएं लिंक्डइन के ऊपर कि जी हम ने एक बड़ा अच्छा वेबिनार किया है। सो प्लीज बच्चों, आई वुड से कि इट्स ऑलवेज गुड, मेमोरीज रहती हैं सबकी। सो इस चीज़ पे परवाह नहीं करना कि कोई कैसा लग रहा है, कोई कैसा नहीं लग रहा। हम सब किसी न किसी लाइफ के फेज में एक सर्टेन लेवल पे होते हैं और याद रहेगा सबको। तो लेट्स प्लीज सॉरी इंटरप्ट ओपन। Sir, just सर give me a इंट्रोडक्शन while, मैं सबका कोई क्वेश्चन allow कर कर रहा है। जी
सर किसी का शायद कोई मैं क्वेश्चन है कैमरा हैंडी अलाउ कर जी जी, क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटा। भाई किसका क्या क्वेश्चन है, पूछ ले। मीनवाइल मैंने सबके कैमरास ऑन कर दिए हैं, तो whoever is comfortable आप अपने कैमरास ऑन कर लें, so we'll take a picture. आयशा तुम स्क्रीन शेयर करना बंद कर दो ना, ताकि सारे बच्चे जो जो कंफर्टेबल है खोल लें। स्क्रीन शेयरिंग से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आई विल डू दैट। क्यों भाई? ओके, सो गाइस प्लीज open your cameras to have a picture. आयशा तुम्हारी तो पिक्चर टिल्ट आ रही है। ओके, नाउ इट्स फाइन। ओके, सो सिर्फ 2 लोगों की पिक्चर आ रही है, एक आयशा की और वासिफा की। भाई बाकी बच्चों को कोई इशू है? नहीं सर, बहुत सारी आ रही हैं। अच्छा, सबकी आ रही, मुझे सिर्फ 3 बच्चे नजर आ रहे हैं। Wasifa, have you clicked the pictures? Wasifa. Okay, I आयशा suppose क्लिक picture नहीं ली। पिक्चर्स। मेरी आई नहीं आई अभी तक। Okay, thank you so much everyone. ओके जी, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच एवरीवन। मैम ये पिक्चर भी काइंडली शेयर कर देगा ताकि हम लोग भी अपने प्रोफाइल पे शेयर कर सकें। Sure. I'll send that. ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Okay, thank you everyone. Thank you so much sir for connecting us twice and giving your time. Thank you. Thank you ma'am for Thank you, giving us sir, such and thank you, opportunity. ma'am. Thank you No everyone problem at for all. showing You're all interest in this welcome. topic and coming. Yeah, indeed. And thank you sir. We really owe this to you as an organization कि आप हमारे बुलाने पे 2 दफा आए and अपना टाइम भी आपने स्पेयर किया. So we are really thankful to you. I would be very happy ये 100 के 100 बच्चे जितने भी यहाँ मौजूद थे, सबकी बेहतरीन लिंक्डइन की प्रोफाइल्स बने और ये बच्चे फाइवर पे जाके ये सर्विसेज प्रोवाइड करें कि ये इन चीज़ों को सीख के इससे पैसे कमाएं. दिस मेक्स मी वेरी हैप्पी. इंशाल्लाह वन डे दे विल डू दैट.